بلکہ یوں سمجھیے کہ جس طرح ایک باغبان کس طرح اپنے پودوں کا آبیاری کرتا ہے، اسی طرح آپ نے اس کی اردو کو پروان چڑھایا ہے۔ ہندوستانی علم اردو کے جہاں تک سے جب تک آپ قیام خالیات میں آپ صدر رہے، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اردو ٹوسٹ ماسٹر 2013 میں قائم کیا۔ اب حیدرآباد نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ہے اور آج اردو ٹوسٹ ماسٹر کی افتتاحی رکھی ہے۔ میں تالیوں کی گونج میں اس شعر کے ساتھ عبدالرحمن سلیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ سب مخاطب کریں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو بول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی جو اردو بول سکتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ سلیمائی بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے نام میں بھی سلیم ہے، نور الدین محمد کے نام میں بھی سلیم ہے، تو میں سمجھتا کہ کوئی فارغ ہوگا تو میں صاحبان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ایک بات اور بات کرتا ہوں کہ جہاں سے گزرتے ہیں ایک سلیقہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی زوردار تالیوں میں عبدالرحمن سلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ذی حشر اردو کے چمکنے والے ستارے اور عزت مآب اساتذہ کرام، محبان اردو، آج کے ان محبان اردو کو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس محفل کے مہمانان خصوصی آپ تمام ہیں، اور اسی لیے میں نے اسٹیج پر کوئی چیئر نہیں رکھی۔ آپ تمام اس محفل کی صدارت کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور آپ تمام اس محفل کے مہمانان خصوصی ہیں۔ میری نگاہ میں ایک زندہ مستقبل، میری نگاہ میں ہے ایک زندہ مستقبل، میں اپنے ماضی مردہ کا سوگوار ہوں۔ حضرات، مجھے اس بات کی بےحد مسرت ہے کہ ہم نے حیدرآباد میں اردو کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن قائم کیا۔ اس فاؤنڈیشن کی ابتدائی تقریب کے ساتھ ساتھ ہم نے اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب کا بھی قیام عمل میں لایا ہے۔ میں آج آپ تمام کا فرداً اس محفل میں استقبال کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی محبان اردو ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اور ہمارا کاروان اور آگے بڑھے گا۔ آج کے اس موقع کی مناسبت سے میں اردو کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن کا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یوں تو ہم ریاض میں 1996 سے ہندوستانی وزن اردو کے نام سے ایک تنظیم چلا رہے تھے، اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے ہم نے محافل منعقد کی۔ اس میں ڈاکٹر عابد معیز جہاں تشریف رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے۔ پہلے جو صدر تھے ہمارے جناب سکندر علی خان، جو آج حیدرآباد میں آج کل ہیں اور پریش ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ عابد معیز صاحب نائب صدر ہوتے تھے اور میں جنرل سیکرٹری ہوتا تھا۔ وہ پھر آ جانے کے بعد اور دوسرے لوگ میرے ساتھ جڑے، میں نے صدارت قبول کی، اور اس کے بعد ہم نے وہاں پر ٹوسٹ ماسٹرز کلب قائم کیا اردو میں۔ یہ 4 مقامات پر دنیا میں اردو ٹوسٹ ماسٹرز کلب ہے۔ اس میں ایک جدہ میں فارم ہوا تھا سب سے پہلے، اس میں جناب نعیم جاوید کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، وہ بہت زیادہ اس میں فعال رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ریاض میں اور دمام میں ہمارے ساتھی جو یہاں موجود ہیں، جناب سلیم حسرت صاحب اور شیراز مہدی صاحب، ضیاء الدین صاحب، میاں صاحب اور بہت سارے احباب نے مل کر وہاں پر ایک قائم کیا۔ ابھی آپ جناب سلیم حسرت صاحب جو امیڈیٹ پاسٹ پریزیڈنٹ تھے وہاں کے، ہمارے ساتھ ہیں آج کے
नाज़रीन, मैं टोस्ट मास्टर्स क्लब की मीटिंग के उनसे सुनेंगे। बहरहाल अब मैं थोड़ा सा लिखा हुआ तारुफ है ताकि आप तक सही बात पहुंच सके कि हमने क्या किया है और उसके क्या है कि उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत तरक्की व इत्तिक़ाल की ग़र्ज़ से शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ और यकजहत ज़हन रखने वाले गैर मुक़ीम हिंदुस्तानियों की जानिब से क़ायम करदा तंजीम है। इससे कबल जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदुस्तानी बज़्म उर्दू के नाम से शहर रियाद में 1996 ईस्वी में इस तंजीम के अरकान फ़आल रहे और इसके तहत 2013 ईस्वी से 5 साल तक हमने बज़्म उर्दू टोस्ट मास्टर्स क्लब कायम किया और उसके 100 इजलास मुनक़िद हुए और जुलाई के महीने में उसका 100वां इजलास हुआ, उसकी हमने तकरीब भी मुनक़िद की। इस दौरान में हमने देखा कि जो साथी हमारे साथ 5 साल जुड़े हुए रहे, जब शुरू से आखिरी तक उनकी कायदाना सलाहियत और कम्युनिकेशन स्किल्स, मवासिलाती सलाहियत और सोचने समझने की और बोलने की और अपने अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की की ज़मीन रही। इसके अगराज़ और मक़ासिद में उर्दू अदबी व तहज़ीबी विरसे से नई नस्ल को वाकिफ़ करवाना, नई नस्ल में अदबी ज़ौक़ पैदा करना और उनकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना, उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन टोस्ट मास्टर क्लब का क़याम ताकि पर्दे वाहिद की कायदाना सलाहियत, मवासिलाती सलाहियत, सोचने की सलाहियत, सीखने की सलाहियत और सीख कर अमल करने की सलाहियत में इजाफा हो सके। समाजी तकारीब का इनेकाद जिसमें उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन टोस्ट मास्टर क्लब के इजलास मुनक़िद करने के अलावा तकरीबी मुकाबले, तहरीरी मुकाबले, नज़म ख़वानी मुकाबले, इस्तक़बालिया महफ़िलें, मुशायरे, रस्म इजरा, उर्दू की तरक्की और तरवीज में इमदाद, उर्दू की कुतुब की इशाअत और सालाना अवार्ड्स और इसके अलावा आमिला की जानिब से मंजूरा दूसरे इक़दाम शामिल हैं। उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन की 7 रुकनी आमिला रजिस्टर्ड बॉडी की हैसियत से रजिस्टर करवाई गई है, मगर उसमें हमारे जुमला अरकान 15 हों जो अभी फिल करना बाकी है, चूँकि हम फॉर्म किए हैं, अभी आइंदा उसमें इजाफा होगा, जिनकी तादाद बढ़ाई और घटाई जाएगी। मियाद आमिला ताहयात रुकनियत होगी, सिर्फ इस्तीफा या इस दुनिया से रुखसती की बुनियाद पर मंसूब होगी। ये तो हमारे उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन की बात हुई। उसमें मेरे साथ जो अब 7 रुकनी हैं उसमें जो जुड़े हुए हैं उसमें मेरा बेटा है इमरान, आर्किटेक्ट है वो भी। उसका मेन मकसद ये था कि हम अपने यंगस्टर्स को साथ में लेके आएंगे, तो इसलिए और चूँकि हैदराबाद में वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरा फरीज़ा बनता है कि उनको सबसे पहले लाऊं ताकि दूसरे लोग भी मेरे साथ शामिल हो सकें। उसके बाद हैं जनाब शहबाज फारूकी जो डे 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं जनाब अमजद हुसैन साहब पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जनाब मोहम्मद अजीजुद्दीन साहब हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जनाब जावेद अली साहब हैं, जनाब कलीम साहब हैं। ये तो सऊदी अरब में हैं मगर आते जाते रहते हैं और बहुत फ़ाल की हैसियत से हमारे साथ हमेशा उसमें भी शामिल रहे, इसमें भी शामिल रहे और मुख्तलिफ तंजीमों से वाबस्ता हैं। इसके साथ मेरे साथ हैं जनाब ताहिर फराज साहब और जनाब हमीद साहब। आप दोनों मेरे साथ इसके फॉर्मेशन से लेकर जुड़े हुए हैं। ये आमिला के हैं, वैसे ये सब अपने अपने फील्ड में काम करते हैं, उनकी अपनी तंजीमें हैं, उसके साथ साथ उन्होंने
हमारे साथ फाउंडेशन का काम करने की भी ठान ली है। और उसके अलावा मेरे साथ और रियाद के साथी हैं मोहम्मद मुबीन, तकीउद्दीन मीर और जनाब अब्दुल रऊफ हफीज साहब आर्किटेक्ट हैं, वो भी वहीं रहते हैं। उसके अलावा जो टोस्ट मास्टर क्लब के इंतखाबात रुकनियत साजी के तकमीले के बाद मुनक़िद किए जाएंगे, जो सालाना बुनियाद पर होंगे। उसमें जो अहदे होंगे वो हैं सदर, नायब सदर तालीम, नायब सदर रुकन साजी, नायब सदर ताल्लुकात आमा, मुतमद उमूमी, काज़न, मुंतज़िम इंतज़ामिया। ये टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल की जानिब से एक बॉडी बनती है। उसमें इतने जो 7 अहदे होते हैं, वो 7 अहदे पर इंतखाबात होंगे। हम जब बॉडी फॉर्म करेंगे और मेंबर्स आएंगे तो उनमें से हम चुन के मेंबर बनाएंगे। और ये सालाना बुनियाद पर होते हैं। हर साल उसमें हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए, मगर हर मरतबा इंतखाबात की बुनियाद पर उसको नए अहदेदार ज्वाइन होते रहते हैं। हमने उर्दू कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन की उमूमी रुकनियत रखी है। उसमें माहाना, सालाना और एकमुश्त है। माहाना रुकनियत 100 रुपये है और सालाना 1000 रुपये और लाहयात रुकनियत 10,000 रुपये। मैं इस मौके पर यह भी बताना चाहता हूँ कि उर्दू की तरक्की व तबलीग और इशाअत के लिए जामे जर्नलिस्ट बने जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं वो आगे बढ़कर आते हैं। और एक बात बहुत खुशी है कि हमारे ख़ानदान से 1 लाख रुपये हमने इस फाउंडेशन में डोनेट किया है और उसके साथ ये काम शुरू किया। आखिर में अपनी बात खत्म करने से पहले रवि सिद्दीकी का एक शेर रखूँगा। उर्दू जिसे कहते हैं तहजीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़ुबान आई। और हमारे जो टोस्ट मास्टर्स के नए आने वाले जो हैं उनके लिए हम चाहते हैं कि इज़हार कर रहा हूँ हकीकत का शान से, तहजीब मैंने सीखी है उर्दू ज़ुबान से, हर शख्स मेरे करता है उर्दू का मुतक़द, जिंदा रहेगी उर्दू मेरे ख़ानदान से। याद जिंदा सोहबत। शुक्रिया।